بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے. استقبال ویلکم ہے. آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں. آج 25 شعبان 1443 ہجری ہے, 28 مارچ 2022 بروز پیر منڈے. دوستو, بہت اہم امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دینی ہے. وہ یہ کہ ابھی مکہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں, عمرہ کرنا چاہتے ہیں رمضان کے اندر, تو کھلا ہوا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی مکہ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کرا لو. جن لوگوں نے کرایا اس میں میں بھی تھا, بہت سارے لوگ تھے الحمدللہ. بہت سارے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے واٹس ایپ کر کے بتایا کہ بھائی ان کا ہو گیا, شکریہ ادا بھی کیے. اس کے بعد میں پھر سب کا بند ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ بھائی پھر لوگ مجھے پوچھنا شروع کرے, تو پھر میں دوسری مرتبہ بتایا, اب تیسری مرتبہ بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی میں نے بھی اپنا جو ہے 20 رمضان کا کینسل کر کے پھر نیا جو تاریخ ملی میرے کو, میں وہ حساب سے لے لیا. تو کیونکہ 20 رمضان بولے تو بہت سارا رش رہیں گا, بہت سارے لوگ آئیں گے, تو رش میں جانا اتنا صحیح نہیں رہتا. تو اسٹارٹنگ میں ہی چلے جاؤ اچھا رہتا. تو سیٹیں بھی خالی تھی. تو آپ بھی جو ہے آج کل سیٹیں خالی ہے, آپ لوگ ٹرائی کریے گا, بڑی آسانی سے مل رہا ہے. لیکن اگر آپ کا پرانا اگر پہلے سے آپ کا اس میں ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں ملے گا. میں نے کیا کیا کہ بھائی میں نے پرانا کینسل کیا, پھر میں نے نیا کیا تو فوراً میرے کو مل گیا. اگر آپ کے پاس توکل نامے دکھا رہا ہے سیٹیں اویلیبل ہے, لیکن جب آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دکھائے گا کہ بھائی آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے, آلریڈی آپ کی سیٹ بک ہے. ظاہر بات ہے بھائی ہر 10 دن میں آپ نیا بک کر سکتے, لیکن آپ کے پاس ابھی 1 مہینہ پڑا ہوا ہے بکنگ کا, تو بھی آپ کی بکنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ آلریڈی آپ ریزروڈ ہے. ایک سیٹ ریزرو ہوتے ہوئے دوسری سیٹ ریزرو نہیں ہو رہی. یہ میرا تجربہ ہے جو مجھے لگا, میں نے سوچا آپ کے سامنے بتا دوں, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جانا چاہتے ہیں اور جلدی ارلی کرنا چاہتے ہیں. پہلے کیا تھا کہ بھائی میں نے بھی بک کر لیا تھا اور اب نیا کرنا چاہ رہا ہوں تو نہیں ہو رہا تھا. تو بہرحال دوستو, اب صرف مشکل سے 1 ہفتہ ہے, 1 ہفتہ بھی نہیں ہے, بہت شارٹ ٹائم ہے. اگر آپ لوگ کرانا چاہتے ہیں تو پرانا کینسل کرے. اگر آپ کے پاس دکھا رہا ہے بہت سارے سلاٹس خالی ہے تو آپ لوگ کر لے نئے اس میں. اگر بہت سارے سلاٹس خالی نہیں ہے, ریڈ کلر دکھا رہا ہے, تو پھر یہ رسک آپ مت لے, کیونکہ سارے ریڈ کلر کا دکھانا اس بات کی علامت ہے کہ سارے فل ہے. اگر کوئی کینسل کرتا ہے تو پھر آپ کو کچھ ریڈ دکھائے گا, کچھ آپ کو جو ہے خالی دکھائے گا. جو خالی 1 سے زیادہ خالی دکھ رہے ہیں آپ کو سلاٹ, رات کا ٹائم, دن کا ٹائم, جو بھی ٹائم آپ کو دکھ رہے ہیں, خاص طور سے دوپہر کا ٹائم, کیونکہ دوپہر میں روزہ رہنے کے ٹائم پہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ بھائی عمرہ کرے روزے کی حالت میں. تو یہ صرف جو ہے نوجوان کر سکتے ہیں, جن کے پاس اللہ تعالیٰ طاقت دیا وہی لوگ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹائم جو ہے ان لوگوں کے لیے شاید خالی ہے. بہت سارے لوگ یہ ٹائم کو کینسل کر دے رہے ہیں. تو میرے کو بھی دکھا کہ بھائی میں آپ سے بتا دوں, یہ بات شیئر کر دوں. تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اگر سلاٹ زیادہ خالی دکھ رہے ہیں تو پرانا کینسل کرے, ورنہ کینسل مت کرے. جو بھی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کیجیے. ہاں دوستو, کل میں ایک نیوز دیا تھا کہ بھائی بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہیں, دکھی ہے کہ شاید ان کا اقامہ اب 6 سال کے لیے ہی بنے گا. 6 سال کے بعد ان کا کیا ہوگا نہیں معلوم. ویسے بھی بہت سارے لوگوں کی ایج فیکٹر ہے اور نوکری کا بھی پرابلم ہے. ایسے بہت سارے پرسنل اور کمپنی کے سارے کچھ ایشوز ہے. ایسے میں جو ہے جب یہ بات آ رہی ہے بار بار کہ بھائی 6 سال کے بعد شاید اقامہ بنے گا یا نہیں بنے گا, دوستو پہلی بات تو یہ دل دماغ سے نکال دے, کیونکہ رزق جو ہے اللہ کے ہاتھ میں. ابھی یہ قانون نہیں بنا, اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. ظاہر بات ہے آپ بھی اپنی طرف سے سوچیے گا کہ بھائی ایسے کام جو انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی لوگ کرتے ہیں وہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے بعض کام بعض لوگوں کے لیے فکس کر دیے ہیں, تو وہ کام دوسرے کیسا کر سکتے ہیں. ہاں کرنا چاہے تو کر سکتے, لیکن اس کے لیے کافی ٹائم لگے گا. اس طرح آپ اپنے آپ کو سمجھائے, یہ مسئلے کو سلجھائے اور اپنے آپ کو اس میں سے ڈپریشن میں سے نکالے. دوستو غیر ضروری سوچنا, غیر ضروری جو ہے ان چیزوں میں بحث کرنا اور ان کا ڈر اپنے اندر لینا, بار بار ایسے تذکرے ذکر کرنے سے انسان جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ارے بھائی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب دنیا سے رزق ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. تو لہٰذا آپ کو سوچنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اوپر والے سے کنیکٹ کرے, تب آپ کے اندر اچھے خیالات آئیں گے. اور دوسری بات دوستو, آپ کو اپنے ملک جانا ہے, چاہے انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, جہاں کہیں سے بھی آپ آئے وہیں پہ آپ کو جانا ہے, وہیں پہ آپ کو جو ہے جا کے کام کرنا ہے.
तो लिहाजा क्यों ना आप पहले से इस बारे में सोचें, गंभीरता से सोचें, सीरियस होकर सोचें कि भाई मैं अपने मुल्क में जाके ऐसा क्या काम करूं जिसकी वजह से मुझे 2 वक्त की हलाल रोज़ी मिल जाए और मैं माँ बाप भी बच्चों के साथ खुश खुर्रम रह सकूं और मैं सबके परेशानियों को भी दूर से कर सकूं। तो दोस्तों इसके लिए मैं तकरीबन 2-3 दिन से आपको बता रहा हूं कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं जो डीएक्सन फूड सप्लीमेंट कंपनी में काम करते हैं और बेहतरीन कंपनी है। मैं भी उसके प्रोडक्ट्स लेता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं कई लोगों को बताया हूँ, उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट्स लेने से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 180 कंट्री में इनके जो है ब्रांचेस है और पूरी जगह असली प्रोडक्ट्स आते हैं। वहाँ के कंट्रीज़ जिस कंट्री में भी ये भेजते हैं उस कंट्रीज़ के क़ानून को फॉलो करते हुए वहाँ पे जो है इनके अपने फूड सप्लीमेंट देते हैं, जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। जिस तरह आप घर के तरकारी, अनाज, फ्रूट ये वो खाते हैं, सेम उसी तरह का ये भी जो है इनका प्रोडक्ट है जिसको सुपर फूड सप्लीमेंट कहते हैं। एक बेहतरीन ग़िज़ा है, आपको तंदुरुस्त बना के रखेगी। दूसरी बात दोस्तों, यही जो आप इस्तेमाल करते हैं लोगों से कहना है, लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, लोग भी दुआ देंगे आपको। इस तरह का ये बिज़नेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं और पाकिस्तान में भी मेरे दोस्त हैं, वो लोग ये काम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और माशाल्लाह टीम बना के कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, बता रहे हैं और प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे रहे हैं। इसमें जो है न्यूट्रिशंस की जो है एक तालीम होती है, एक डिप्लोमा होता है, वो सारे चीज़ें इनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं और इस तरह उनको जो है 4 पैसे कमाने के लायक बना रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि कोई भी आदमी किसी का साथ दे किसी के कमाने के वास्ते। जब आप किसी की भी दुकान मेरे घर के सामने डाल देंगे और मैं भी दुकान चला रहा हूँ तो मुझे तकलीफ़ होगी, लेकिन इनका बिज़नेस ऐसा है कि भाई दुकान सामने के आजू बाजू किधर भी डाल लो, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। एक बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं और एक अच्छी तरीके से बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े लोगों को बुला के मीटिंग कराते हैं, बातचीत कराते हैं। इस तरह आपका जो है अंदर की काबिलियत को निखारते हैं। काबिलियत निखारने के लिए आप यूट्यूब पे थोड़ा चेक करें, लाखों रुपए का प्रोग्राम है सीखने के लिए। आप सीखने में रह जाते हैं लेकिन सीख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं और आपके अंदर एक शेर जैसा आपकी ताकत आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या ताकत है। फिर जब आप बोलने लगते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई वाकई मेरे अंदर भी है और मैं भी कर सकता हूँ। बेहतरीन है दोस्तों, अगर आप इनका काम सीख लेते हैं और इनके काम को सीख के करते हैं तो ये आपकी मदद भी करते हैं और आपको एक ज़बरदस्त किस्म का जो है शोरूम भी खोल के दे सकते हैं। उसके लिए कुछ इनकी क्वालिफ़िकेशन है, वो क्वालिफ़िकेशन पूरी करना पड़ता है और ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, कम ख़र्चा है। इस तरह आप ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, दुकान वगैरह भी अपने अपने मुल्कों में लगा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे एक रिप्रेजेंटेटिव से मिले और मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसके ख़ास ये काम करने वाले हैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनके नंबर दूंगा। वो फ़ौरन आपके घर पे परमिशन लेके आपसे आपके घर पे मिलने आ जाएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे और आपको बताएंगे तरीक़ेकार क्या है। ज़रूर मिलिएगा, फ़ायदा उठाइए, परेशान मत होइए। अल्लाह हम सब की मदद करे, आमीन। आप भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मुझे मक्का से एक ये वीडियो मौसूल हुआ है, आपके सामने लगा रहा हूँ। मुफ्ती साहब है और ये इन्होंने मुझे भेजा है और कहा है कि भाई ये मस्जिद बना रहे हैं हैदराबाद के अंदर, गरीब लोगों की बस्ती के अंदर। एक बहुत बड़ा काम है, ये भी मुफ्ती साहब है, वहाँ पे तालीम भी होंगी और वहाँ पे मस्जिद भी होंगी, नमाज़ पढ़ाएंगे लोगों को, नमाज़ लोग पढ़ेंगे, नमाज़ सीखेंगे और सीख के पढ़ेंगे। इस तरह आपको भी सवाब होगा। आइए मैं उनका वीडियो लगा रहा हूँ, उनकी ख़ुद की ज़बानी उनकी दरख्वास्त है। अगर आपको इनकी मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मस्जिद हराम में खाने काबा के बिल्कुल सहन में मताफ़ में खड़ा हुआ हूँ और इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि हैदराबाद हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक मस्जिद जो पहाड़ी शरीफ इलाके में गरीब बस्ती में मस्जिद तामीर हो रही है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी है। उस आबादी में मस्जिद का इंतज़ाम ज़रूरी है। उस मस्जिद में कई लोग
नमाज़ पढ़ने के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के फासले तक जाना पड़ता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो रही है। आप तमाम अहले खैर हजरात से गुजारिश है, अपने मरहूमीन के नाम से, मरहूम माँ बाप के इसाले सवाब की नीयत से या ज़ख़ीरा आखिरत समझकर इस मस्जिद की तामीर में दिल खोलकर ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और जो हजरात मस्जिद के लोकेशन पे आना चाहते हैं या देख के देना चाहते हैं या लोकेशन पर खड़े होकर अपने किसी मरहूम के नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, एक बार तशरीफ़ लाइए। तमाम डिटेल्स, लोकेशन, एड्रेस आप हजरात को स्क्रीन पर दिया जाएगा। आप हजरात उसको मुशाहिदा करें और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हजरात डायरेक्टली वहाँ पर हाजिर होकर मुशाहिदा करने के बाद भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। आप भी ताउन कीजिए, अपने दोस्तों को, अहबाब को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।